Good evening, everyone. Just put your name in the chat boxes at your attendance. Okay. And then we will continue with our lecture. Okay. Suraj, put your name in the chat box. Good. So see, uh, we will continue our functions chapter. Okay. In the last lecture, we have seen few things that we are going to revise today, and then we will proceed. Okay. So, greatest integer function. It was the last point that we have addressed, I think, isn't it? So we have seen last time this point, and we will quickly revise this point topic, and then we will take the exercise and the revision. Okay. So what exactly is greatest integer function or a step function? So in simple words, if I want to find out the greatest integer function of this statement, okay, so what I will do, I will just remove the fractional part and I'll take the integer. Okay, so इसका greatest integer part क्या रहेगा 5 रहेगा 5.7 का क्या रहेगा 5 रहेगा very good. Now -6.3 का क्या रहेगा -6.3 के लिए हम फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव तो करते हैं लेकिन यहाँ पे -6 नहीं लेंगे हम. ओके, विल गो वन स्टेप फर्दर, दैट इज -7 will be the greatest integer function of this given function. Okay, greatest integer इसका क्या रहेगा 7 रहेगा, -7 रहेगा, -6 नहीं रहेगा. Okay, so these are the things that we have to remember, these two things only. So greatest integer function or greatest integer of pi will be what? It will be 3 because value of pi is 3.14159 something like this. So remove all the fractional part and remaining is the greatest integer. Similarly for e, okay, e के लिए क्या है, e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.71 होती है. सो 0.71 को हम निकाल देंगे तो इस तरीके से हमारे पास e की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बचेगी दैट विल बी 2. ओके, सो again one function is defined over here. Okay, so this function is graph of ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है. सो इस ग्राफ को भी हमने अच्छे से समझ लिया है तो थोड़ा सा एक क्विकली रिव्यू हम यहाँ पे कर लेते हैं. नाउ एफ ऑफ एक्स दैट इज -2 एंड दैट इज फॉर -2 to -1. Okay, so -1 is not included here, -2 is included in this function but -1 is not. So see, -2 x की वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं, हम -2 से लेके -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है -2 है सीधे. बट आई जस्ट जूम, बट -1 इज नॉट इंक्लूडेड. सी, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है ना, इसका मतलब कि -1 इज नॉट इंक्लूडेड. दैट्स व्हाई a blank disk or a white disk is shown here. Okay, so this is a white disk. That means the value -1 is not included in this function. And if we talk about the value -2, then the -2 is present. Okay, so that's why the black disk is here. Similarly, for the time period or the values of -1 to 0, see, this is the time span or the what we can say portion of x-axis for which the function that is equals to y is defined. See, f of x is nothing but it is equals to y. Okay, you have to remember this. F of x is equals to what? Y. जब हम f of x की वैल्यूज की बात करते हैं तब हम y के वैल्यूज की बात करते हैं. ओके, एंड x की वैल्यूज की जब बात करते हैं तो obviously we are talking about the values of x on the x-axis. So see, -1 to 0. So 0 is not included. That's why the normal bracket is given here or the closed bracket is given here. Okay, and -1 is included. So the square bracket is, मतलब ये जो bracket है ये square bracket से start हो रहा है and it is
ending with the normal bracket, that is also called as closing bracket. Okay, so इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है. Similarly this function is there again here, it's something and it is like something this. So इस ग्राफ की मदद से हमें क्या मिलता है, क्या फाइंड आउट करने को मिलता है. मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप वैल्यू रखोगे x की 2.5, ओके 2.5 वैल्यू आप रखोगे, तो 2.5 के लिए अगर आप f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सो व्हाट यू विल गेट 2. सी आपको दो ही वैल्यू मिलेगी. इफ यू पुट 2.5, 2.7, 2.3 वट एवर, 2 से लेके 3 तक आप कोई भी वैल्यू रखिए 3 को छोड़ के, सो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट वैल्यू ऑफ f of x as a 2 only. Okay, so that's why this graph shows the greater step, or what we can say, greatest integer function. Okay, so this is the graph. So we have understood all the points in the previous lecture, and this was just a revision. Now what is the domain and range for this graph? So domain is R, that means real numbers, any real number can be there. So this graph can be extended. Okay, this graph is not limited to this much. How it can be extended? See, if so this is -3, it is -4, let us suppose यहाँ पे -4 है. ओके, सो यहाँ पे -3 है, तो -3 से लेके -4 तक यहाँ पे कुछ तो ऐसा फंक्शन रहेगा. सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी एक फंक्शन रहेगा, यहाँ पे नीचे भी, मतलब ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहा है. ओके, इट इज कंटिन्यूइंग इन दिस साइड एंड इन दिस साइड आल्सो. सो दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू के लिए, एनी रियल वैल्यू ऑफ x gives us the output or the valid output. Okay, so that's why domain is R, that is real number, set of real numbers. Now what is the range means set of outputs, what we can get as an output. So I, that is set of integers, is output. Okay, we will not get input as a, sorry, output as a 2.1 or 2.5 or 10 point something, like we will never get the output in the form of fractions. Okay, or there won't be any decimals, there will be always integers, 1 2 3 4 10 100 999 whatever. Okay, the output is going to be always and always integer. So that's why the range is set of integers here. So this is the graph that we have seen. So here are few properties of the greatest integer function. Now why I am revising these properties, because to solve the practice set you must remember properties of the function also. Okay, so revision is the utmost important thing that you should include in your studies. If you don't follow it since your स्कूल डेज. ओके, मतलब अगर आप स्कूल में आपको रिवीजन करने की आदत नहीं है तो आपको यहाँ पे आदत डालनी पड़ेगी. एंड इफ यू हैव द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग, ओके, अगर आपको रिवाइज करने की हैबिट भी है तो आपको दुगना रिवीजन करना पड़ेगा. मतलब आपने जो 10th में रिवीजन किया है उससे डबल, ट्वाइस, थ्राइस ऐसा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो समझ में आएगा. कहते हैं ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है. मैथमेटिक्स सिर्फ उन लोगों के लिए हार्ड है जिनको रिवीजन करने की आदत नहीं है. ओके, अगर जो कोई बंदा रिवीजन करता है उसके लिए मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है. चलो, सो सी प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा ये ब्लैक डिस्क, व्हाइट डिस्क क्यों है. ब्लैक डिस्क का मतलब क्या है कि दैट वैल्यू इज इंक्लूडेड, एंड व्हाइट डिस्क का मतलब क्या है कि दैट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड. ओके, नाउ graph of y is equals to greatest integer function of x lies in the region bounded by the line y is equals to x and y is equals to x minus 1, which is quite obvious. Okay, मतलब कि अगर हम 2.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो इसका फंक्शन तो आएगा 2 एंड दैट ग्राफ विल बी बाउंडेड बिटवीन 2 and 3. ओके, सॉरी, इट शुड बी आई थिंक 2 and 1. या 2 and 1 के बीच में इसका ग्राफ जो है वो बाउंड रहेगा, जो कि हमने ऊपर देखा भी है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस थर्ड वन, greatest integer function of x plus greatest integer function of minus x will be zero if x is integer. अगर x integer है तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा. लेकिन अगर x integer नहीं है
then इसका आउटपुट विल बी -1 एंड व्हाई दैट वी हैव सीन। ओके, सो इसका मुझे फिर से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, यही एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं, सो नो नीड टू टेक एग्जांपल्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी सिमिलर ही है, और यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट शुड बी रिमेम्बर्ड। इसमें क्या करना होता है हमें, अगर हमें f ऑफ 4.8 दिया है, सो व्हाट वी विल जस्ट रिमूव द 4 फ्रॉम इट। ओके, यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8 हमें मिलेगा। लेकिन उल्टा होता है व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव नंबर्स। f ऑफ -7.1 इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा दैट वोंट बी 0.1, वो 0.1 नहीं रहेगा, दैट विल बी 0.9। मतलब कि उसे 8 कंप्लीट करने के लिए, 7.1 को 8 तक पहुंचने के लिए कितना, कौन से वैल्यू की जरूरत है, तो 7.1 में अगर हम 0.9 ऐड कर दे तो हम 8 पे पहुंच जाएंगे। सो 0.9 विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन और द इक्वेशन। इसके लिए ग्राफ इस तरह का रहता है। ओके, सो आई वोंट डेमोन्स्ट्रेट द ग्राफ अगेन, सो ये ग्राफ आप समझ लीजिए। उसका डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स सेट ऑफ इनपुट्स दैट इज ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट मीन्स रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कुछ भी आप वैल्यू रख दीजिए x के, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट की जो वैल्यू है वो लिमिटेड है। ओके, दैट इज फ्रॉम 0 to 1, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, 1 नहीं आएगा, 0.99 आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। सो आउटपुट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट 0 एज वेल एज all the fractional numbers or the decimal numbers up to 0.99. Okay, so 1 is not included because the bracket is different given here. So I think this example we have completed. Properties भी देखिए similar ही है, this property is similar to the third property that we have seen earlier, and these two properties are very identical to the properties that we have already learned. Okay, so without wasting much of a time, we will invest our time in the examples. Now example 14, example 13 I think मैंने लिया है in the last class. Okay, so example 14 हमारा बचा था, हमने I think नहीं लिया है last class में. So 2.8 plus 5 का हमें क्या निकालना है, fractional part function निकालना है. Now how I understood the fractional part function to be found out, कैसे मुझे कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट। अगर कर्ली ब्रैकेट है तो हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्या हमें निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट है और एक क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहली वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, द सेकेंड वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। सो these are the meanings of the brackets in this chapter, very important. Okay, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट जो है वो विदाउट एनी रीजन नहीं दिया गया है, देयर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरी ब्रैकेट गिवन इन पर्टिकुलरली दिस चैप्टर। सी इसका अगर हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा हमें, 7.8 मिलेगा, और 7.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो 0.8 है। ओके, एंड 2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या है, 0.8 ही है। सो 2.5 माइनस 2.8 माइनस 5, सो पहले तो हम इसके एडिशन का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर calculating the fractional parts, so that is nothing hard in it. Now this is very interesting example, example 15. If fractional part function of x and greatest integer function of x are the function of x are respectively, solve for x if x, see now the bracket, okay, curly bracket, x plus 1 plus 2x is equals to 4 square in square bracket x plus 1 minus 6. सो इसके लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, either exact value or the range of values. Now
see, if you see this example, then we have to remember few properties of fractional part function as well as greatest integer function. So this is the first property, x plus n, फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम x plus n का निकाले तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट x ही आता है। नो कैसे, देखो, अगर x की वैल्यू मान लीजिए 0.8 है, ओके, 0.8 इज द वैल्यू ऑफ x, तो x में आप मान लीजिए 7 ऐड कर दिया मैंने, n की जगह पे क्या ऐड कर दिया, 7, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये इट विल बी जीरो, नहीं सॉरी, इट विल बी, व्हाट इट विल बी, बताइए, आप भी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या बनेगा, ये 7.8 होगा, ओके, एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा दैट विल बी 0.8। सी, मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, x is our 0.8 plus 7, 7 is n is any natural number, ओके, सो इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या बना, 7.8 बना, और इसके बाहर करली ब्रैकेट दिया गया है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है, सो दैट विल बी 0.8। तो अभी मैं 7 की जगह पे दूसरा कोई नंबर रख देता हूँ, 7 की जगह पे मान लीजिए मैंने रख दिया 11, ओके, सो 11 अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 11 बनेगा, सी, 11 बन गया, सो 11.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.8 ही आएगा। So can we say that x plus n, see, x plus n is nothing but the fractional part of x, okay, so x की जो वैल्यू रहेगी वही हमें हमेशा मिलने वाली है, because we are finding the fractional part function। नाउ n की वैल्यू डेसिमल में नहीं रह सकती या फिर फ्रैक्शंस में नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर में हमारे डेसिमल्स नहीं आते हैं, डेसिमल फंक्शन में डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, बराबर। So this is the first property that we are going to use. Now this is the second property, that is x plus n is equals to n, x plus n, see, now x की वैल्यू कुछ भी रहने दीजिए आप, सो इसका जो हमें मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, मॉड ऑफ एक्स, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एन, ये हमें इसका रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ टू प्रूव दिस विल टेक वन एग्जांपल, ओके, सो एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि है 2.8, वॉट एवर, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके, नो नो प्रॉब्लम विद इट। सो एक्स की वैल्यू है 2.8 और मैंने उसमें ऐड कर दिया n इज इक्वल्स टू 7, ओके, n इज इक्वल्स टू 7, अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ, सो ये कितना बनेगा, 9.8 बनेगा, 9.8, लेकिन 9.8 में से हमें देखिए, सो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, सी, मॉड ऑफ एक्स नहीं है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, सो ये मैंने सेपरेटली लिख दिया और इस 7 को मैंने सेपरेटली लिख दिया, ओके, सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इक्वल, कैसे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 9.8 इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा हमारा, 9 आएगा, बराबर, और इसमें से हमें क्या आएगा, मिलेगा 2 मिलेगा, 2.8 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें निकालना है तो 2 मिलेगा, एंड 2 प्लस 7 विल बी 9। तो थोड़ा सा चेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लो, greatest integer function of x plus n can be written as greatest integer function of x plus n, ओके, तो ये जो n है ये ब्रैकेट के बाहर है। नाउ there is one more thing that we must be remembering, okay, so see what is it, see, x is equals to greatest integer function of x plus fractional part function of x। now how, see, x की वैल्यू मान लीजिए 2.8 है, बराबर, सो 2.8 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा ऑब्वियसली, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या रहेगा, 0.8 रहेगा, ओके, सो 2.8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.8, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे। So these are the three properties that we must remember to solve this example. Now, how they are coming handy to us, that we will see. But before that, I just want a response from you guys that you are understanding the things that I am telling about, and you are able to listen to me properly, and the presentation is also fine. Okay. So Samir has confirmed that
he is understanding everything and he is able to hear and watch everything. Okay, Suraj also ठीक है. Arya, what about you? Arya, quick response is expected. Okay, ठीक है. So see, why I tell that revision is important. See, अगर आप इस फंक्शन को देख लेते, see if you see this function, तो आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट. ओके, सो अगर आपने रिवीजन किया है एंड यू नो दिस फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज अभी अभी आपको अगर नए नए दिख भी रहे होंगे, फिर भी ये फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं. ओके, वी हैव सीन दिस फॉर्मूलाज. ओके ओके आर्या, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देखे हैं. ओके, बट आई डोंट नो you remember these or not, but if you revise this then you will remember this. so इसका हमें यूज कहां पे होने वाला है देखो. तो मैंने x प्लस एन का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालने की कोशिश करी थी, तो दिस इज द x प्लस एन, isn't it? Fractional part of x plus n, and this is the greatest integer part of x plus n, that is n की जगह पे 1 यहाँ पे लिखा है. सो इसको एक्सपांड कर दो, हमने जिस तरह से लिखा है ना ये फॉर्मूला में, उस तरह से नीचे लिख दो. तो x प्लस 1 बन जाएगा x. ठीक है, सो इस फॉर्मूला की मदद से मैंने यहाँ पे x लिख दिया. प्लस नाउ सी 2x, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे मैं ये लिखूंगा. सो मैंने x की जगह पे ये लिख दिया. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 की जगह पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड प्लस 1 लिख दिया. मतलब कि ये जो हमने एक्सपेंशन सीखा था ना, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. ठीक है, सो इस तरह से हमने ये चीजें अप्लाई कर दी. नाउ हमारा जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा. सी, fractional part of x plus 2 into fractional part of x plus 2 into integer greatest integer part of x. so इस 2 से इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 आया. ओके, सो 4 माइनस 6 इज माइनस 2. एंड अगर ये 4x इधर जाता है तो, या फिर ये 4x यहीं पे रहेगा, ये 2x यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x बन जाएगा. So finally we have 3 into fractional part function of x is equals to 2 into greatest integer function of x minus 2. Okay, so this is the final thing that we have got. Now we know one thing, that fractional part cannot be greater than 1 and it cannot be smaller than 0. Okay, that is always true. Now see, अगर इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इस कंप्लीट फंक्शन की मल्टीप्लाई बाय 3 फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगी. ओके, सो दिस सी 3x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी. कैसे? मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर 0.99 भी हो गई, सो यहाँ पे x की वैल्यू 0.99 है, तो टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 2.97 बनेगी. ओके, 2.97 विच इज स्मॉलर देन 3 ग्रेटर देन 0. ओके, सो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. नाउ ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए. ये क्या ट्रू होना चाहिए कि 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 2 शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 3. अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है तो ऑब्वियसली इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 और 3 के बीच में ही होनी चाहिए, बिकॉज दीज टू आर इक्वल फंक्शंस. ओके, सो ये हमने लिख दिया और इसकी मदद से हमने ये लिख दिया. बराबर. सो ये जो 2 यहाँ पे माइनस में है ना, ये माइनस 2, सो दैट कैन बी सेंड टू दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. ओके, सो अगर हम सेंड करते हैं तो इससे क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. So 0 plus 2 becomes 2 and 2 plus 3 becomes 5. So बचा क्या, 2 multiplied by greatest integer function of x. इसकी वैल्यू लाई करती है between 2 and 5. ओके, नाउ ये जो 2 इस मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर
अगर आ जाएगा, ओके सी यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, तो दैट विल बी इन द डिवाइड. सो फाइनली वी हैव 1 to 2.5. एक्स की वैल्यू अभी कहाँ पे लाई कर रही है, 1 से लेके 2.5 के लिए. लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा सिर्फ एक्स नहीं है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. सो 1 और 2.5 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस. हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर between 1 and 2.5? I'm talking about integers. How many are there? 14 integers. Okay, Suraj is saying 14 integers. Can you write 2 3 of them? Okay, 14 में से आप 3 3 लिख दीजिए दोनों भी. Write the 3 integers that comes between 1 and 2.5. Any 3, कोई भी 3 integers आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में. Okay, 1.3, 1.5 and 2.2. Okay, so these three are the answers that are given by Suraj. So Suraj, I must tell you, I know you know that, but you must have forgotten that integers means complete values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the integers. Okay. 1.3 cannot be considered as an integer. 1.5 cannot be considered as integer. 2.2 is not also integer. Okay. So now how many integers are there? Can you tell me? See, these are not the integers. These are the decimal values or the fraction values. हे अपूर्णांक आहेत, ते पूर्णांक नाही आहेत. इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स. Yeah, very good, Suraj. There must be 2 integers. Which one? Which one? Samir, you are not responding. 1 and 2. Very good, Suraj. So only 2 integers are there. So x की वैल्यू क्या हो सकती है? Either 1 or 2. See, this is the but greatest integer function of x takes only integer values. We know that. यहाँ पे हमें बताया नहीं है कि उन्होंने इंटीजर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके नाम में ही इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इंटीजर मस्ट बी टेकन. सो 1 and 2 इज द आंसर. सिंस x की वैल्यू 1 है, तो x शुड बी लाई बिटवीन 1 and 2, एंड x की वैल्यू अगर 2 है तो इट शुड लाई बिटवीन 2 and 3. हाउ? सी, x की वैल्यू 1 और 2 के अगर 1 है, तो ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी 1.5 और 1.6. क्यों? क्योंकि 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही आता है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 ही आता है, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो भी 1 ही आता है. मतलब 1 से लेके 1.9 तक कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पे है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1 ही आएगा. सी, greatest integer function will be 1 for the any value of x to 1.99. Why I am telling here 1.99? Because the value is less than 2. Okay, it is not equals to 2. It should be less than 2 and it should be greater than 1. So similarly for this, therefore x is the element of 1 to 3. Now 3 should not be included. यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसका मतलब 3 should not be included. Now x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू हमें चलेगी. नाउ आई एम टेलिंग अबाउट कोई भी, मैं कोई भी वैल्यू की बात कर रहा हूं.
इंटीजर्स नहीं। अगर आप 1.5 रखते हो, 1.7 रखते हो, 2 रखते हो, कुछ भी रखते हो, सो किसी भी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है दैट इज ट्रू। ये जो इक्वेशन दिया है ना, दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ or any value between 1 and 3. 3 is not included. You can take 2.99 but not 3. Okay, so you have to verify whether this equation satisfies our results or not. This will be your homework. Okay, so try this. किसी भी वैल्यू को आप, किसी भी 2-3 वैल्यूज को आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में एंड ट्राई टू फाइंड आउट। एक्स की वैल्यू एक बार आप 2.7 रख देंगे, एक बार आप 9.9 रख देंगे, वॉट एवर यू कैन पुट, वॉट एवर। 9.9 नहीं रखेंगे, 3 से नीचे रखेंगे। ओके, एक और 3 के बीच में आप वैल्यूज रखेंगे। ओके, सॉरी आई जस्ट स्लिप माय टंग। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज अगेन। सो ये प्रॉपर्टीज कुछ इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती नहीं है, ये दीज प्रॉपर्टीज दैट यू हैव सीन, so you don't need to actually focus on these properties. Okay, so without focusing on the properties, I like to explain this property. Okay, this property is maybe new property for you, so that's why I'm taking this. Characteristic and mantissa of common logarithm 10 log 10 base 10 x, sorry, log x base 10 का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालने की बात करें तो सी x की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। सी दिस इज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। अगर मैं फिर से बता रहा हूं 9.8 अगर मैं बात कर रहा हूं, सो 9.8 मीन्स 9 प्लस 0.8। okay, so this is the function. So x is equals to integer plus fraction that we have seen. So what we are going to do, we are going to apply log everywhere. See, log x is equals to log of x, that is for integer, and log of x for fraction. Now this part, see, this part is called characteristic, and this part is called mantissa of logarithm. Okay, so you just have to remember that what is called mantissa and what is called characteristic. ठीक है, सो अगर आपको सपोज दिया है log of let us say log to the base 10 8। ओके, तो इसका आपको बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कीजिए। सो वी व्हाट यू विल डू, log of 8 का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो फॉर एग्जांपल आपका आंसर जो है आता है 2.71 फॉर एग्जांपल। ओके, 2.71 एक्चुअली नहीं आएगा, तो आपको क्या बोला है, व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मैंटिसा मैंने बताया ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x, that will be mantissa. See, characteristics and mantissa are two names of the parts. Okay, Samir, that is the meaning of mantissa. So मैं mantissa क्या होता है ये भी बताऊंगा, wait. So इसका अगर रिजल्ट देखिए, log of 8 का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बोला है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, that will be 2. See, characteristic will be 2 and mantissa will be 0.71. Okay, so that will be mantissa of logarithm, that will be characteristics of logarithm. Okay, so these are the two things that there's nothing special about characteristic and mantissa. There's just name that we must remember. Okay, so see, for example, if we have given one example here for log 23 base to the 10, so what we have to find out, we have to find out characteristics as well as mantissa. Now as you can see, अगर log 23 की जो वैल्यू है वो हम निकाले तो दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन log to the base log 10 and log 100, इसके बीच में ही रहेगी ना। सी 10 is smaller than log 23 and 100 is greater than 23, so that's why इसकी जो वैल्यू है वो भी log 10 और log 100 के बीच में रहेगी। सो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि log 10, okay, log 23 is greater than log 10 but it's smaller than log 10 square. now 100 को हमने 10 स्क्वायर लिख दिया, 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया सिर्फ। ओके, नाउ सी
इस ये जो यहाँ पे जो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया। तो ये ऐसा क्यों किया? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम। हमने सीखा है यहाँ पे, अगर log 10 के स्क्वायर में अगर कुछ भी है, स्क्वायर है, क्यूब है, रेस्ट टू द 4 है, तो ये सीधा यहाँ पे सामने आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, सो नॉट ओनली फॉर log 10, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं लॉगरिदम ऑफ 6, ओके, लॉगरिदम ऑफ 6 raised to the power 7, raised to the power 7, so that means 7 log 6, ये जो 7 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट वी हैव सीन। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट। ठीक है, सो सी लॉग, ये यहाँ पे log 10 है, log 10 है, सो ये log 10 खत्म खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1। ये log 10 खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2। क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ log की वैल्यू 1 बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में 2 है, दैट विल बी एज इट इज, सो इट विल बी 2। सो देन log 23 का अगर हम इंटीजर पार्ट निकालें, सी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है? दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, so it may be 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, up to 1.9, whatever it can be. It cannot be greater than 2, it cannot be smaller than 1. Okay, so for this range what is going to be characteristic? Characteristic यानी कि क्या? greatest integer function. Characteristic and greatest integer function are nothing but the one and the same. So 1 will be the characteristic of this logarithm. Okay, 1. See, logarithm ऑफ 23 का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे log 23 की वैल्यू कहाँ पे लाइक कर रही है? बिटवीन 1.1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू है इसकी 1.7। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दैट 1.7 वैल्यू है, तो 1.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा, अगर हम यहाँ पे इसे रख देते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो निकल जाता है, बचता है सिर्फ 1। सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1। कंफ्यूज नहीं होना है, कैरेक्टरिस्टिक मींस इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फंक्शन, एंड मैंटिसा मींस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो अगर आपको यहाँ पे मैंटिसा निकालने के लिए बोला जाए, तो मैंटिसा जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंटिसा कुछ भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी, 0.3 भी, 0.4 भी, अप टू 0.9, वट एवर इट कैन बी, बट इट इज नॉट फिक्स्ड, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज फिक्स्ड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इज फिक्स्ड। सो ठीक है, so this was the example that was very important in understanding the concept of characteristic as well as the mantissa. So are you guys clear about characteristic and mantissa? Okay, okay Suraj, thank you. Good, Sumir, okay, ठीक है। So see, now given that log 2 बेस टू द 10, नाउ मैं बेस का कभी भी वैल्यू रीड नहीं करूंगा, ठीक है? अगर log के बेस में ई है तो हम उसे क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग, एल एन कहते हैं। एंड लॉग टू द बेस 10 है तो उसका मतलब कि हमारा नॉर्मल वाला लॉग, तो मैं उसे अभी इससे इसके बाद में लॉग ही कहूंगा, लॉग टू द बेस 10 मैं नहीं कहूंगा। ओके, सो मैं इसे रीड करूंगा log 2 is equals to 0.3010, that is given. Okay, log 2 is equals to 0.3010 is given. Find the number of digits in the number 20 raised to 10. तो क्या बोल रहे हैं ये? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 20 raised to 10। तो देखिए अभी हमें दिया कुछ और पूछो और कुछ रहे हैं, बराबर? सो say see what they are doing, they are just giving us the map of India and they are asking us where is New York. ओके, तो अभी मैप हमें इंडिया का दिया है और वो पूछ क्या रहे हैं कि इसमें न्यूयॉर्क कहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द, ओके, यू फाइंड ट्रबल इन ब्लॉक क्वेश्चंस, ठीक है? सो इसके लिए मैं तुम्हें अभी एट द एंड ऑफ लेक्चर थोड़ा सा कुछ रिकमेंडेशन करूंगा सूरज, देन यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन लॉगरिथम। ओके,
just remind me about log. I'll tell you. Okay, log is very easy. Logarithm is very easy. Don't worry about it. चलो ठीक है. See now, देखो क्या था हमारा क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर 20 रेज टू द पावर 10. सो इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो देखते हैं हम. सो लेट अस कंसीडर x इज इक्वल्स टू 20 रेज टू 10. 20 रेज टू 10 यानी कि क्या है कि हम पकड़ के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू x है. नाउ टेकिंग log ऑन ईदर साइड्स. सो दोनों साइड में हम क्या लेंगे, log लेंगे. सो log x will be log 20 raised to the power 10. सो ये रेस टू का जो पावर है that will come down like this and 10 log 20 यहाँ पे बन जाएगा. Okay, so I hope you understand the first line. Log x is equals to log 20 raised to the power 10 and this 10 comes here, so it becomes 10 log 20. Good. So ये 10 यहाँ पे आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया, ये ऐसा ही रहेगा 10 log. नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, हम इस 20 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकते हैं. नाउ 10 साइड में रहेगा और log m इंटू एन है यहाँ पे. सी log m इंटू एन है तो हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं. ओके, log m प्लस log n लिख सकते हैं. सो सी log 2 यहाँ पे रहेगा और log 10 जो log 10 बेस 10 क्या है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है. सो log 2 की वैल्यू हमें दी गई है. सी दिस इज द वैल्यू ऑफ log 2. करेक्ट. नाउ दिस शुड बी लाइक दिस 0.3010 प्लस 1. ये 1 यहाँ पे आया और log 2 की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी. सो 10 multiplied by 1.3010, so that is going to be 13.010. So that is the value of what, that is the value of log x. ओके, सो यहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ पे मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट की है. सी मैंटिसा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है. सो 13.010 वैल्यू मिल गई. सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x इज 13. सी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 13 है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने रहेंगे, 14 रहेंगे. क्यों रहेंगे 14? बिकॉज हमारा जो वैल्यू आया है दैट इज 13.010. मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3.5 डिजिट्स है या फिर 7.5 डिजिट्स है. डिजिट शुड बी इंटीजर लाइक आइदर 3 और 4 डिजिट्स, आइदर 7 और 8 डिजिट्स. 7.1 7.2 इस तरह के डिजिट्स नहीं रहते हैं, बराबर. सो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. दैट्स व्हाई वी आर राउंडिंग ऑफ 13.010 टू 14. नाउ यू विल आस्क व्हाई नॉट टू 13, बराबर. तो देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा आया है, 13 से ज्यादा आया है, मतलब कि it should be obviously 14 only. Okay, it should be 14 only. So that's why the value is 14 and number of digits in the number 20 raised to 10 will be 14. आप कैलकुलेटर पे करके देखिए. Okay, so let me just try whether we can do this on a calculator and we'll try to count the numbers as well. Okay, so let me just see whether can I represent the calculator to you and whether that calculator is capable of doing such thing. Okay, wait. Just give me a few seconds, students. Okay, so the calculator is also saying something else, not something else actually, but it is showing the value in the form that is not suitable or that is not expected for us. Okay, so you can try and find out the number of digits in this number 20 raised to the power 10. Okay, that will be your job to do. Now I have told you in the last lecture as well, exercise 6.2 जो है आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मैं कर दूंगा. 6.1 भी हमारा बचा है, लेकिन now mostly what I will do
and try to cover up your syllabus rather than the practice sets. Okay, so practice set में आपको जितना effort आप लगा सकते हो इतना efforts आप लगाइए. Okay, keep revising, keep solving questions. See, if I want to take each and every example of your textbook, so that is not possible. That is, I'm what I'm saying, that is not possible. ठीक है, ये possible ही नहीं है. So it is your duty to reduce my, it is your duty to reduce my load. Okay, so आप जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि सर ये हमने सॉल्व कर लिया है. यू डोंट टेक इट, ये प्रैक्टिस आप मत लीजिए. हमें सिर्फ एक्सरसाइज 6.2 में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सो यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, सो ऐसा आप कीजिए. देखिए अभी हमारे, मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा. सी, so this is the syllabus. That is I think complex number is completed, sequence and series is also I think completed, permutation combination is also completed. We have completed that, isn't it? So function is about to be completed. Now see what is remaining: sets and relations, methods of induction of binomial theorem, limit, continuity and differentiation. So ये तीन और ये दो, पांच चैप्टर्स यहाँ पे बचे हैं. सो 5 चैप्टर्स यानी कि पकड़ को चलो हमारा एक क्लास होता है इन अ वीक. सो एक वीक में अगर एक क्लास होता है तो महीने में हमारे 4 क्लास होते हैं. एक चैप्टर को अगर 4 क्लास भी लगते हैं, मिनिमम 4 क्लास में तो हमारा चैप्टर होता नहीं, ज्यादा ही लगते हैं, तो भी हमें 5 महीने और लगेंगे, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. सो अप्रैल में हमारा सिलेबस खत्म होगा. ओके, संडे ऑल्सो, यस, आई ट्राई टू टेक. ओके, सो मैं संडे पे भी लेने की कोशिश करूंगा, नो प्रॉब्लम. सो सी, तो क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ. सी, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वोंट बी टेकिंग यूर पार्ट. आई वॉन्ट टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग. मैं तो चाहता हूँ कि आपको मैं हर एक क्वेश्चन सिखाऊं, आपका एक हर एक क्वेश्चन का डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ. बट एफर्ट शुड बी फ्रॉम योर साइड. ओके, मुझे देखिए, मैंने ये बहुत दिनों पहले सीखा है ना, अभी मैं इस इन सब चीजों के टच में नहीं हूँ, तो मुझे लेक्चर से पहले रिवाइज करना पड़ता है सब चीजें. सी, रिवाइज एटलीस्ट, जब मैं आपका लेक्चर लेता हूँ तो उससे पहले मुझे 45 मिनट से लेके 1 घंटा 1.5 घंटा तक मुझे सब ये चीजें लेके बैठना पड़ता है. मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ, क्योंकि लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, समझ रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सो अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ता हूँ और लेक्चर से पहले, जबकि मुझे तो एग्जाम भी नहीं देनी है, तो आपकी तो ये ड्यूटी बनती ही है कि लेक्चर, अगर आज हमारा मैथमेटिक्स 2 का लेक्चर है, सो एटलीस्ट आज हमने 2 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए बिफोर द लेक्चर. यू पीपल एग्री विथ मी और नॉट? बताइए मुझे. अगर हमारा आज का लेक्चर है मैथमेटिक्स का, तो आपको 2 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए. मैं 1 घंटा यहाँ पे करता हूँ आपके लिए, 1 घंटा पढ़ने में और 1 घंटा आपको सिखाने में. एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग 2 hours फॉर यू. सो इट इज ऑल्सो योर जॉब ऑल्सो टू पुट एफर्ट्स एंड स्टडी फॉर 2 hours. सो सी, अगर आप इस तरह से जाएंगे, इट इज नॉट कंपल्सरी, इससे मेरा कोई भी फायदा नहीं है, बराबर. आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो या फिर मत पढ़ो, लेकिन इसमें आपका नुकसान है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो. इट इज योर जॉब. आज कौन सा वार है? मंगलवार. आज मैथ्स 2 का लेक्चर रहता है हमारा क्लास में. सो आई एम गोइंग टू स्टडी मैथ्स 2. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी इज, जो हमने पिछले क्लास में सीखा है, उससे पिछले क्लास में सीखा है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो, उसके बारे में मैं रिवाइज करूंगा. बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है. ओके, सो जो हमने सीखा है वो, और जो हम सीखने वाले हैं वो, अगर ये दो चीजें हम 2 घंटा में रिवाइज कर ले, so our lecture will be very fast. You will grasp the things very fastly. आपको समझ में बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा और हमारा टाइम बहुत कम वेस्ट होगा. ओके, सो सी, put your efforts and score good marks in 11th as well as 12th. Maths is a not hard subject, not at all hard subject. Okay, yes, 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 yeah, it's your future, so effort should be from your side. And I'm very happy, Suraj, that you realize that. Okay, I'm very happy to listen this. So as Suraj has one question, had one question, that sir, I'm facing problems in solving logarithm things. Okay, so logarithm को किस तरह से solve करना है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो फॉर यूर लेवल, सी, अभी अगर आपको log 2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल दूं मैं, सी, आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन नाउ हियर, log टू द बेस 10 एंड 2 की अगर मैं आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूं, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. Okay, I hope you are able to, no, you are not able to see.
सी नाउ यू मस्ट बी एबल टू सी log 2 बेस टू द 10 अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए मैं बोल दूं तो कैलकुलेटर पे मैं अगर डालूंगा तो एक कुछ सेकंड के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, लेकिन आई थिंक आपको कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है, बराबर, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। लेकिन एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो जब से मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था तब से मुझे कैलकुलेटर अलाउड था, मतलब मैं एग्जाम में भी कैलकुलेशन लेके जा सकता था। हर एक इंजीन मतलब जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है दे कैन टेक द कैलकुलेटर विद देम, बिकॉज तो ऐसा क्यों, मतलब कि हमें 90% तो कैलकुलेशन ही करने पड़ते हैं, तो कैलकुलेशन अगर हम ओरली या फिर पेपर पे करने जाए सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंथी प्रोसीजर। सो कैलकुलेटर होके भी पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए कैलकुलेटर्स अलाउ किए जाते हैं। सो मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा था कि ये वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है फॉर माई एग्जाम सो इट इज इजी फॉर मी, बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू फॉर योर एग्जाम सो दिस इज वेरी हार्ड फॉर यू। ठीक है, सो आपके एग्जाम में तो कैलकुलेटर है नहीं, तो लॉगरिदम में देखिए कि हम किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो सी यू डोंट ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, अगर आपने लॉग टेबल पढ़ा है, अगर आपको लॉग टेबल समझ में आ गया है तो ये लॉग लॉग की वैल्यू आप निकाल पाओ। ओके, सो मैं लॉग टेबल के बारे में मंगलम सर से एक बार बात करूंगा। ओके, सो उस सर से बात करने के बाद में मैं जानूंगा कि आपने लॉग टेबल पढ़ा है या फिर नहीं, या फिर अभी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि लॉगरिदम का टेबल आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, यस और नो, यू नो। ओके, लॉग टेबल इज रिमेनिंग, ठीक है, ठीक, चलो, नो प्रॉब्लम। सो लॉग टेबल देखेंगे, तो लॉग टेबल के बाद में मे बी विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये इसको सॉल्व करना हम जान सकते हैं, लेकिन अभी समझ लीजिए कि आपने लॉग टेबल नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो यू आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड विथ यू इन योर क्लास। सो इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी ही नहीं। सी लॉग 2 टू द बेस 10 दिया है ना, आपको दिया भी है तो भी एग्जामिनर ने ये सोच के दिया है कि इनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एंड दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी ही नहीं है, तो क्या करना है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ कैन वी अप्लाई द रूल्स दैट आर गिवन फॉर लॉगरिथम। ओके, सो लॉग फंक्शन हमने सीखा था, सो लेट मी जस्ट गो टू द लॉग फंक्शन। सो लॉग फंक्शन के नीचे कुछ उसके प्रॉपर्टीज दिए हैं। ओके, सो दीज प्रॉपर्टीज आर मोर देन इनफ टू सॉल्व लॉगरिथम प्रॉब्लम्स। नाउ सी दिस इज द लॉगरिथम फंक्शन, सी दिस इज द लॉगरिथम फंक्शन। सो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। सूरज दिस इज स्पेशली फॉर यू, हाँ, यू नोट दिस डाउन। सो सी यू रिमेंबर फ्रॉम दिस ईच एंड एवरी वर्ड, आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए अगर आपको लॉगरिथम सॉल्व करना है। सो यहां से आप शुरू कीजिए, सो यहां से लेके कहां तक, यहां तक। ओके, यहां तक अगर आपने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, इसमें याद करने की कोई भी चीज नहीं है। सी सी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज आर देयर। ए रेस टू जीरो इज वन, सो लॉग वन इज इक्वल्स टू जीरो, लॉग वन की वैल्यू जीरो रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई है तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लॉग बी इंटू सी इज इक्वल्स टू लॉग बी प्लस सी, लॉग सी होता है, ये भी हमें, ये प्रॉपर्टी है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, उसके उल्टा सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है सी, लॉग बी रेस टू द पावर सी, सी बाहर आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। सो ये चीजें अगर आपको पता है, सी इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स, नाउ लॉग एक्स बेस टू ई, तो लॉग अगर बेस में ई है तो इसका मतलब उसे हम एल एन लिखेंगे, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो, दीज आर मस्ट फॉर यू। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई गारंटी यू, if any question arises in your exam, so you will be able to solve with the help of these properties only. Okay, log 10 to the base 2, इसके लिए तुम पूछ रहे हो मुझे कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इसके लिए तुम्हें मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था, तो यहां पे मान लीजिए कि log टू द बेस 2 है, सॉरी log 2 और बेस रेस टू 6 है फॉर एग्जांपल। सो फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, सी विच प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, पावर प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में है हमारा log b टू द पावर c एंड इज इक्वल्स टू c log b। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6 log 10 log to the base 10 and 2,
सो फिर से एक वैल्यू आ गई। तो ऐसी कोई ना कोई तो उस एग्जांपल में हिंट रहेगी जिससे कि ये लॉग और कोई और चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, या फिर ये 6 और कोई चीज और चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यू हैव टू सी फॉर द कैंसिलेशंस। आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ओके। सो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए वो उस तरह से दिया गया है। सो प्रॉपर्टी चेक करने के अभी अभी हमने देखा ना, सी ये जो हमने लेटेस्ट एग्जांपल देखा उसमें भी तो वही था। हमने लॉगरिदम की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। अभी मैं जो एग्जांपल हमने सीखा है मैं उसी को थोड़ा सा आपको, मैं जो बता रहा हूँ उससे रिलेट करके मैं आपको बताता हूँ, ओके। सी लेट मी जस्ट गो टू दैट एग्जांपल। देखो यहां पे आपको क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर 20 20 रेज़ टू द पावर 10। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 20 रेज़ टू द पावर 10। यहाँ पे log 2 की वैल्यू देने की उन्हें क्या जरूरत थी, क्यों दिया उन्होंने, कोई जरूरत नहीं थी ना। लेकिन उन्हें पता था एट सम पॉइंट व्हेन वी आर सॉल्विंग द एग्जांपल वी विल नीड द वैल्यू ऑफ log 2। उन्हें ऑलरेडी पता था, जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है उन्हें ऑलरेडी पता था कि हमें log 2 की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। एंड दे कैन नॉट कैलकुलेट, स्टूडेंट्स कैन नॉट कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव गिवन, they have already given the value. See, now we have put the already given value and we solved the example easily. समझ रहे हो? तो इस तरह से एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। इससे आगे भी जो एग्जाम्स रहेंगी ना, आपको जो सिखाया है आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो उसमें से ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। सिमिलरली लाइक दिस, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो log 2 उन्हें देने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे जरूरत थी क्या, नहीं थी। वो सिर्फ बोल सकते थे कि फाइंड द डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। No, yes, I don't have actually in lecture, okay, and we have 4 minutes, so we can continue, okay. So I hope your query was addressed, is it? So Suraj, so you don't bother about this, just go through the logarithm things, and if you still face any problem, then I'm always here, okay. So chalo, I think that's it for today, and bye bye. We'll see you in the next lecture. Okay, bye. Bye, Suraj.